A thing of beauty is joy forever. Remember, yesterday we had discussed it. Page 98. So, first and foremost thing is, you have to read the poem 3 times. We begin from Harshit. Harshit 1, Jasmeet 2, Harleen 3, Arshpreet 4, Simarpreet 5, Dilpreet 6, Jagdeep 7, Jaspreet 8, Kushbu 9, Vanchika 10, Divjot 11. Start reading, beta. 1 पैराग्राफ 4 लाइन्स सबने रीड करनी है. 3 टाइम्स हम इसको रीड करेंगे ताकि पोयम आपकी अपनी बन जाए. पहले जॉन कीट्स भी दोबारा से रीड करना है. कोई वर्ड, कोई लाइन कहीं पे भी जो भी किसी को अनक्लियर होए वो बताता जाए. मैं तो अपनी तरफ से बताऊंगी सही कि क्या चीज कहाँ पर है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. Begin now. Begin बेटे. हर्षित, वेटिंग. आपके कोई क्लास के अंदर फ्रॉम द पोएट. आपकी क्लास में कोई मोटो G6 वाला बच्चा भी कोई पढ़ता है किसी सेक्शन में? नो मैम. No, ma'am. Okay. Yes, from the beginning. Okay, ma'am. John Keats was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his Primarily. moods and Harshit, aspirations in Harshit, terms of language. Harshit, the word is Yes, ma'am. primarily. Primarily. Yes, ma'am. Primarily. The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived in Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. Okay. Next. Next child. Number 2. Number 2. मैम जसमीत को बोला था आपने. Why is Jasmeet not reading then? Ma'am, I'm not in previous class, so I don't know which poem you're going to start. I said page 98, A Thing of Beauty. And yesterday's recording had been sent. Please listen to it so that you don't miss out on anything. Okay, ma'am. Please read karo ye A Thing of Beauty se. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but Okay, will अगर keep. कोई चीज दुनिया में सचमुच में खूबसूरत है तो वो कभी भी मिटेगी नहीं. वो एटर्नल रहेगी. वो कभी भी कहीं पे भी खत्म नहीं हो सकती. वो थिंग ऑफ ब्यूटी सबके लिए हमेशा के लिए जॉय प्रोवाइड करेगी. इट इज अ हैप्पी फीलिंग. रादर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू, उसकी लवलीनेस इंक्रीज होती चली जाएगी. Pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep
full of sweet dreams and health and quiet breathing. So in the desert of life, where there is a lot of scorching heat, Therefore, wait, and every Jasmeet, your chance is over, beta. Wait now. So, you ma'am. think of beauty, it shall provide a shady place. Shady place metaphorically, because life has got a lot of hassles. We need to cling on to something so that we are able to survive for years together. This is the first room of my house. मेरा ये घर का जो door है उसके back side में I had put a quotation. I would see to that quotation and get the inspiration. I would feel very happy. I would feel very inspired. So everybody has one's own thing of beauty. हर एक को अपनी एक thing of beauty identify करनी पड़ती है. किसी के लिए कोई चीज important हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज हो सकती है. लाइफ के अंदर hassles होना बहुत natural है. क्या लाइफ की hassles के अंदर हमें हार जाना चाहिए? No. हमें कैसे हम चलाएं अपनी लाइफ जब इतनी नेगेटिविटी होए? उस थिंग ऑफ ब्यूटी को पकड़कर, क्लिंग करके, उस फेथ को, उस कन्विक्शन को, उस बिलीफ को. हरलीन. Yes, ma'am. Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? Wait. Spite बेटा wait. रीडिंग, कल भी बताया था कि रीड जो होती है वो एक तरह का ऐसा बुके होता है जो फ्यूनरल्स के अंदर यूजुअली नजर आता है. किसी की डेड बॉडी में सोल्जर्स को फेयरवेल के टाइम में उनकी बॉडी के ऊपर रखा जाता है. राउंड थिंग. रीड करना, वीव करना, बुनना. हमारे को जब हमारे पास थिंग ऑफ ब्यूटी होगी तो हमारे लिए क्वाइट शेडी प्लेस होएगा. हम अच्छे से सो सकेंगे, सुख की नींद सो सकेंगे. हमारी जो लाइफ होएगी उसके अंदर if we are having a good sleep, then we shall be able to have sweet dreams. We shall be healthy. Our breathing shall be quiet. And therefore, क्या हर सुबह हम अपना और नेचर का जो फ्लावरीज डेलिकेट रिलेशन है, क्या हर मॉर्निंग हम उसको दोबारा से वीव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं? रीडिंग दिस सर्कुलर मूवमेंट, क्या हम अपना और नेचर का रिलेशन रीड कर रहे हैं? आर वी रीडिंग? जो बैंड है, जो वो बहुत डेलिकेट है, नैरो स्ट्रिप, बहुत ही छोटा सा है, जो हमें बाइंड करता है. वर्ड इज BIND, बाइंड करता है. किसके साथ? अटैच करता है हमें नेचर के साथ में. क्या हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं हमेशा अर्थ के साथ में? प्लीज रीड. spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days. So life is having a lot of issues, a lot of problems. Spite, बुरी भावना, ill will, मन के अंदर नफरत, किसी को भी अपने जैसा ना समझना, arrogance. Spite है, disappointments है, सोचते हम कुछ है, होता कुछ है लाइफ के अंदर. Disappointed हम हो जाते हैं. Inhumanity, क्योंकि इतने सेल्फिश हैं हम लोग, इतने ज्यादा सेल्फिश हैं कि हमें अपने बियॉन्ड कोई दूसरा समझ ही नहीं आता. अभी मैं शेयर करके स्क्रीन एक मैंने वीडियो आपके लिए बचा के रखी है आज दिखाने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड. सो मैं तुम्हें अभी वो भी दिखाती हूँ. सो क्यों है हम इतने सेल्फिश? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है. हमें भी सिखाया ही ये जाता है. केयर शेयर जो है वो फार फेच्ड वैल्यूज है, थिंग्स ऑफ द पास्ट. ओके, सो क्या होएगा जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो क्या हो जाएंगे? हमारे डेज ग्लूमी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे. तो फिर हम अनहेल्दी हो जाएंगे, हमारी स्टेट नेगेटिव हो जाएगी, होपलेसनेस हो जाएगी, ओवर डार्कन्ड हो जाएगा, जैसे कि लाइफ के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा.
तो फिर हम जिंदगी कैसे चलाएंगे? जिंदगी हम चलाएंगे क्लिंग करके। किसको क्लिंग करके? थिंग ऑफ ब्यूटी को क्लिंग करके। ये वाली बात को याद करके कि विंटर हमेशा नहीं रहती। अगर स्प्रिंग नहीं रही थी तो विंटर भी हमेशा नहीं रहेगी। अगर गुड टाइम लास्ट हो गया तो बैड टाइम हैज टू लास्ट। एक और बात है, किसी और पोएट ने किसी पोयम में ये वाली बात बोली हुई है, जब भी बहुत डार्क हो जाए, बहुत ऐसे वाली सिचुएशन में हम पहुंच जाएं जहां पे लगे कि सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है, तो सोचो कि वहां पे हमेशा चेंज होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज जो होती है उसको खत्म होने के लिए पीक करना पड़ता है साइंटिफिकली। वो पीक पे पहुंचेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होएगी, बहुत तंग होएंगे, लेकिन चेंज जो है वो डेफिनेटली आएगा। उसके बाद में डेफिनेटली चीजें जो है वो सुधरती जाएंगी, बेटर होती जाएंगी। अशप्रीत, वीडियो ऑन करके जल्दी रीड करो बेटा आगे से। सिमरप्रीत, of noble nature of the gloomy days, of all the unhealthy and other darkened way, made for our searching, yes, in spite of all. Simar, my chance now, bache. So the poet John Keats is saying that there is a flowery band which attaches us to the earth, to the nature. There is spite, there is disappointment, there is inhumanity, there are gloomy days, we feel unhealthy, we feel hopeless. But then when we cling to nature, nature कैसी है? Noble है. Nature मांग नहीं रही, nature दे रही है. एडला विल मेंशन रैट ट्रैप के अंदर नोबल नेचर थी। ऐसी नेचर, ऐसा वाला पर्सन था एडला विल मेंशन, जिसने मैंने आपको रैट ट्रैप पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? हम पढ़ाया है। यस, सो एडला विल मेंशन से सिमिलैरिटी है ना आपकी कि कैसी थी? शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो क्या कर रही थी? वो इन्वेस्ट कर रही थी। सो नोबल है वो नेचर। ऐसे वाले जो नोबल वाले लोग होते हैं, या नोबल वाले वर्क होते हैं, या नोबल वाली थिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं? सबसे ज्यादा नोबल कौन है? नेचर, जिनसे कि हमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है, दैट वी आर एबल टू डू समथिंग इन लाइफ। सो हमारे ओवर डार्कन्ड वेज के अंदर नोबल नेचर हेल्प्स अस टू सर्च, टू फाइंड अ पाथ, कि रुका हुआ नहीं है सब कुछ, कुछ आगे जाने के लिए। अशप्रीत आगे रीड करे। Trees old and young sprouting a shady boom for simple sheep and such a आप बहुत आगे daffodils भाग गए, बहुत आगे चले गए। आपको पता नहीं है कहाँ से पढ़ना है। हमने यहाँ से अभी पढ़ना है यस इन स्पाइट ऑफ ऑल से। लास्ट फोर्थ लाइन ऑफ पेज 98। प्लीज रीड। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल। for simple sheep and such a daffodils कोई शेप ऑफ ब्यूटी है जो कि पैल को, कवर को, कहाँ पे कवर आ जाता है? हमारी सोल के ऊपर। किस चीज का कवर आ जाता है? नेगेटिविटी का। वो कैसे कवर रिमूव होता है? वो थिंग ऑफ ब्यूटी को याद करके, वो वाली थिंग ऑफ ब्यूटी से इंस्पिरेशन लेकर, हमारी जो डार्क स्पिरिट होती है उसमें रे ऑफ लाइट आ जाती है। कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी की जॉन कीट्स इज सेइंग? व्हिच थिंग ऑफ ब्यूटी आर वी टॉकिंग अबाउट? प्लीज रीड। नेचर। बोल बेटे जसप्रीत। यस बच्चा। I was saying the beauty which is taught is nature. I am not able to understand. दोबारा से बोलो प्लीज।
I was talking about. He's talking about nature. ओके ओके, कनेक्शन आज बड़ा आपका वीक हुआ है, आपकी बात जो है वो सही से नहीं कन्वे हो रही। देखो कि क्या उसको सेट कैसे कर सकते हो। मीनवाइल दिलप्रीत शुड रीड। दिलप्रीत वीडियो ऑन करके रीड कर बेटा। वंशिका, जसप्रीत सेट कर रहा है अपना माइक, तब तक आप रीड करो बेटे। सच द सन, Touch the sun, the moon, trees old and young sprouting, a shady boon. For simple sheep and such a daffodils, with the green world they live in. बच्चा माई चांस। सो की थिंग ऑफ ब्यूटी कौन सी है? सच द मून, जैसे कि मून है, जैसे कि सन है, जैसे कि ट्रीज हैं। कैसे हैं ट्रीज? ओल्ड भी हैं ट्रीज और यंग ट्रीज भी हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, स्प्राउट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेडी बून, हमें कवरिंग दे रहे हैं। शेडी बून किसको दे रहे हैं? शेडी बून किसकी केयर करती है नेचर सबसे ज्यादा? इनोसेंट ह्यूमन बींग्स की। सिंपल शीप, इनोसेंट ह्यूमन बींग्स। सिंपल शीप इज इनोसेंट ह्यूमन बींग्स। One more line, daffodils wali, then Jaspreet has to read. पढ़ो बेटा वंशिका। And such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make. Came the hot season, the mid-forest break. Okay. Ma'am ji, stop, break. Example दिया है, such are daffodils. Daffodils are very beautiful flowers, very delicate flowers. So daffodils को green world में they live in, they personify कर दिया है। जिस ग्रीन वर्ल्ड में डेफोडिल्स रहते हैं वहां पर ही उनको बॉर्न करा जाता है, जहां पर पहले से स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं, क्लियर रिल्स होती हैं, रिल्स स्ट्रीम्स, ताकि क्या बन सके? कूलिंग कवर्ट बन सके, उनके लिए शेडी प्लेस क्रिएट हो सके। कूलिंग कवर्ट का साउंड रिपीट हो रही है, अलिटरेशन। क्यों चाहिए उन्हें कूलिंग कवर्ट? ताकि वो फाइट कर सके, सरवाइव कर सके अगेंस्ट दी हॉट सीजन। डेफोडिल्स जैसे इतने डेलिकेट फ्लावर को भी उस कुदरत ने जब दुनिया के अंदर भेजा तो उसके लिए एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट कर दिया, सपोर्ट स्ट्रक्चर पहले से क्रिएट कर दिया। So have faith in Almighty God, have faith in nature, have faith, have a connection with nature, create a relation with nature. You shall be taken care of like the daffodils are being taken care of. Daffodils is a thing of beauty given as reference because it is so beautiful to look at. आगे पढ़ जसप्रीत यहाँ से, the mid forest break. The mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Okay, so क्या हुआ? जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के मिड में झाड़ियां हैं, ब्रेक, थिकेट्स, बुशेस। कैसी बुशेस? थॉर्नी बुशेस हैं। उनके बीच में खिले हुए हैं बहुत सुंदर मस्क रोजेस। ऐसा मस्क रोज को क्यों बनाया? जिसके अंदर थॉर्न है, उसका फूड स्टोर कर दिया। और क्या किया फूड के साथ साथ? उसको प्रोटेक्शन दी। अगर थॉर्न ना होए तो उसको कोई जीने नहीं देगा।
सो क्या करा उस परमात्मा ने, उस नेचर ने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया कि उसको फॉरेस्ट के अंदर थिकेट्स के बीच में ब्लूम कराया, खिला दिया, ग्रो कर दिया, स्प्रिंकल करे हुए हैं, खिले हुए हैं पूरे के पूरे, बहुत खूबसूरत। यस बेटा प्लीज। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. ओके हमने ऐसा इमेजिन करा कि जब हम अच्छे काम करेंगे और हम इस दुनिया से चले जाएंगे, अगर हमने नेक काम करे हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हम हेवन में जाएंगे। हेवन कितना खूबसूरत होएगा, जिसमें कि डेफोडिल्स खिले हुए हैं, जिसके अंदर की मस्क रोजेस ब्लूम कर रहे हैं। ऐसा हमने ग्रैंडियोर, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड हमने इमेजिन करा एनवायरनमेंट। किसके लिए इमेजिन करा? डूम्स के बाद, रूइन होने के बाद, किसके लिए? माइटी डेड के लिए। माइटी डेड में देयर इज अ पोएटिक डिवाइस, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में टू ऑपोजिट थिंग्स को क्लब टुगेदर करते हैं। डेड है लेकिन इतना पावरफुल है कि आज भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आज भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, आज भी लोग उसकी लाइफ को, उसके काम को, किए हुए को लेकर अपनी जिंदगी को चलाते हैं। सो सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स। ऐसा हमने इमेजिन करा है। किसके लिए हमने इमेजिन करा है? माइटी डेड के लिए हमने इमेजिन करा है। मनप्रीत सिंह टू कंटिन्यू। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. हमने इनकी बहुत सारी लवली स्टोरीज सुनी है, देखी है, महसूस करी है, पढ़ी है। बहुत बार हमने इन सारी स्टोरीज को अंडरस्टैंड करा है। जो ये वाली स्टोरीज हैं, ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, नेक्टर है। ये लवली टेल्स हमारे लिए वो वाला एंडलेस फाउंटेन है। एंडलेस फाउंटेन नेक्टर है, इमॉर्टल ड्रिंक का, जो हमारे ऊपर हमेशा परमात्मा पोर करता रहता है। ये हमेशा ही हमारे को कोई ना कोई थिंग ऑफ ब्यूटी की फॉर्म के अंदर इंस्पायर करते रहते हैं, ताकि हम डेस्पोडेंट, डिसग्रंटल होकर जिंदगी अपनी खत्म ना कर दें। हर एक को जीने के लिए कोई ना कोई कन्विक्शन, कोई ना कोई बिलीफ, कोई ना कोई पॉजिटिव थ्रेड चाहिए जिसको वो पकड़ सके, जिससे कि वो आगे जिंदगी बढ़ा सके। सो ये वाले लोग जो माइटी डेड है, इनकी लवली स्टोरीज, टेल्स को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये हमारे लिए अमृत है, ये हमारे लिए नेक्टर है, एंडलेस फाउंटेन, जो कभी नहीं खत्म होने वाला नेक्टर है, जो कि पोर करा हुआ है हमारे को। किसने पोर किया है? परमात्मा ने, कुदरत ने। हेवन के ब्रिंक से, ब्रिंक होता है एज, कोना, हेवन के ब्रिंक से हमारे ऊपर इनकी स्टोरीज को, इनकी इंस्पिरेशन को हमेशा हमें बताया जाता है, हमें सुनाया जाता है, हमें सिखाया जाता है। जो लास्ट टू लाइंस है उसका वन मीनिंग, उन लोगों की स्टोरीज जो है वो इंस्पिरेशन है जिन्होंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा अपनी लाइफ के अंदर, जो नोबल सोल्स थी। सेकंड मीनिंग है नेचर, जो कि हमेशा के लिए ही नोबल है, जो कि हमेशा के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिसको कि कुदरत ने हमारे ऊपर नेक्टर की तरह से, इमॉर्टल ड्रिंक की तरह से पोर करा हुआ है, जो हर वक्त हमारे लिए। आज घर से बाहर जरा सा निकल कर जाओ, ग्रीन, बिल्कुल कितने कलर्स हैं ग्रीन के इस वक्त, ये वाले सीजन के अंदर। कितनी सुंदर जो वीड्स भी जहाँ पे खिले हुए हैं, उसके अंदर में भी अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो है वो आए हुए हैं। जस्ट देख के अपने आप को अम्यूज करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करके जरा सा इस चीज को रिलेट करके देखो। यू शैल बी सो हैप्पी कि ओ माय गॉड, अच्छा कितना सुंदर है सारा का सारा कुछ। हर दिन हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचर के ऊपर। हमारा और नेचर का जो रिलेशन है वो कैसा है? बहुत ज्यादा डेलिकेट, बहुत डेलिकेट, ऐसे ब्रेक हो जाता है, बहुत फ्रेजाइल है। हमें क्या करने की जरूरत है?
हमारे को अपना और नेचर का रिलेशन हर रोज रिवाइव करने की जरूरत है, रीड करने की जरूरत है, फिर से बुनने की जरूरत है, अपना और नेचर का रिलेशन। लास्ट 2 लाइंस जिसने नहीं पढ़ी थी, जो लास्ट पढ़ रहा था बच्चा, वो रीड कर दे। An endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens drink. ओके, मैं इसको पोयम को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। पोयम जो है वो आप क्या करेंगे, इसको रीड करके रेडी रहेंगे डिस्कशन के लिए कल वाली क्लास के अंदर। वी शैल हैव द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। मेरे को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करने में मेरा मन था, इसलिए मैंने आज वाला टाइम जो है वो दोबारा से लगाया आपको ये पोयम बताने में। आई एम शेयरिंग स्क्रीन फॉर शोइंग यू अ वीडियो। शुड आई डू दैट? डू आई डू दैट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम आपकी विंडोज 10 है 8 है? क्या हुआ? मैम आपकी विंडोज कौन सी है? डेस्कटॉप बड़ा अच्छा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं हूँ, एजुकेशन के फील्ड से नहीं हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक क्रिएटिव इंसान हूँ। और आप लोग बेहतर जानते हैं एजुकेशन के बारे में। इतने साल से आप एजुकेशन चला रहे हैं। बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चूंकि मैंने कुछ फिल्में की हैं। एक फिल्म थी तारे ज़मीं पर, और अभी हाल ही में मेरी जो फिल्म आई है 3 इडियट्स, ये दोनों फिल्में एजुकेशन के टॉपिक पर हैं। लिहाजा मैं इस वजह से मैंने काफी रिसर्च की एजुकेशन के ऊपर, और कुछ चीजें मेरे सामने आई, और वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे भी हैं। हो सकता है पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एजुकेशन से जो जिनका संबंध है। और वो ये कि सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है। ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में। हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह, हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। मुझ में भी कमजोरी है, काबिलियत है। आप में भी कुछ ना कुछ काबिलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमजोरी और काबिलियत होती है। और हमें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज एजुकेशन सिस्टम, हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है, उससे मदद करनी है। उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है, वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको ढूंढ सके, और उसमें हमें सपोर्ट करना है। और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है। मुझे अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं, हमारे स्कूल में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं, या हम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं। मुझे एक सवाल पूछता है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, हाउ मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी। और वो जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना, वो मेरे लिए सबसे अहम है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई तो हम सीख ही लेते हैं। जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं कुछ ना कुछ करके सीख ही लेता हूँ। हमारी फिल्म 3 इडियट्स जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग्स रखे थे, टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम ऑडियंस, जैसे आप लोग इनको बुलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी। ऐसे एक टेस्ट स्क्रीनिंग हमने किया था। मुंबई में एक फैक्ट्री में कारीगर लोग काम करते हैं, करीब 25-30 कारीगर आए थे उस स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारीगर था,
उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे ये पूछा, आप लोगों ने फिल्म देखी थ्री इडियट्स? उसमें उसने मुझे एक सवाल पूछा जो बहुत कमाल का सवाल। उसने मुझे ये सवाल पूछा कि सर पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़ दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं, आप तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया। तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बनते? इतने बड़े पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स, जापानी लोग आपके पीछे पड़े, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बनते? बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और ये जो मुद्दा है उसके हार्ट पे जाता है कि जब मैं एग्जाम के लिए रट के जवाब देता हूँ और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूँ, तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूँ या नहीं, ये अभी तक मुझको श्योर मालूम नहीं। लेकिन जब आप नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले ना, तो फिर वो कागज का मायने कुछ होता नहीं। तो मैंने उसको जवाब में 2 सवाल पूछे। मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूँ? उसने बोला हाँ, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको आप अच्छे एक्टर। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा कि मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके मेन कटर और आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके पास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो? उसने बोला नहीं सर। तो मैंने बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिलेगा। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सके, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखे, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, आगे चल के वो किसी की मदद कर सके। दिस इज व्हाट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये मेरी फीलिंग। मैं जहां भी देखता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ जब मैं छोटा था। जब से हमारे बच्चे छोटे होते, जब से बच्चे पैदा होते, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आया कि सेकंड? सेकंड आया, अरे फर्स्ट नहीं है, डांट पड़ती है उसको। जो बोलता है मैं 10th आया तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है। बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। उसको रेस में हम पूछते हैं तो रेस में फर्स्ट आए कि सेकंड में, हम उसको बचपन से, जब से वो केजी लोअर केजी में होता है, जब लोअर केजी में रेस होती है, चमचा मुंह में लगा के उसमें नींबू डाल के भागते हैं, उसमें भी हम बच्चे को पूछते हैं अरे मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, लाओ बेटा मेरा फर्स्ट आना है, मतलब पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं बेटा भागो, मतलब नींबू लेके भागो। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को लगता है यार ये बड़ा जरूरी है, मेरे पेरेंट्स को हमेशा, मेरे पेरेंट्स मुझे एक ही सवाल पूछते हैं, मैं फर्स्ट आया कि नहीं? उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे को अव्वल आना है, मेरे को compete करना है, मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है। टीचर्स भी यही सवाल उसको पूछते हैं आमतौर पे, मेरे साथ हुआ है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया। वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ये हमने उसको ट्रेन किया बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरिया सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है, भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब हुक बाय क्रुक आई मस्ट सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहाँ पेरेंट्स, एडल्ट्स, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बने, अगर हम अपने बच्चों को ये सीखते हैं जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए तो उसको ये सवाल पूछे, ये नहीं पूछे कि मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछे कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की,
आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई? अगर हम उसको ये पूछे तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज? तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा होगा। स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, उसका नजरिया थोड़ा बदल जाए। जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज होगी। क्योंकि तब हमारी सोसाइटी में ऐसे नौजवान होंगे जो खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते।